Hello student, welcome to Gromo School, Himmatnagar. I, Falguni Patel, welcomes you on this online video. Students, today I am going to teach you chapter 1 from standard 7 from science. The name of the chapter is Nutrition in Plants. Now, before going in detail, let me explain you the concept of nutrition. What is the meaning of nutrition? Nutrition का मतलब होता है लिविंग थिंग्स किस तरह से अपना खाना लेते हैं. मैं रिपीट करती हूँ. न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स किस तरह से अपना खाना लेते हैं. As we all know that the plants also are living things, so obviously they also need the nutrition. So today we are going to learn which are the different modes of nutrition in plants. In that, the first method of nutrition or the first type of nutrition in plants is autotrophs. Autotrophs. Now what is the meaning of autotrophs? Autotrophs का मतलब होता है कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करना. Autotrophs का मतलब होता है अपना खाना अपने लिए खुद प्रिपेयर करना. Now the question is why the plants are known as autotrophs? Because they prepare their own food with the help of sunlight plus carbon dioxide, which converts this carbon dioxide with the help of the sunlight and carbon dioxide into starch and oxygens, which we breathe during the breathing. Okay, so the plants are known as autotrophs because they prepare their own food for themselves and for other living things also with the help of the process known as photosynthesis. Means photo means light, synthesis मतलब prepare करना. So photosynthesis means with the help of the sunlight making the food. Now as we all know that the green plants, all the green plants are known as autotrophs. Now why only the green plants are known as autotrophs? Because the green plants, the leaves contain the green color pigments known as chlorophylls. Because in green plants the leaves contains the green color pigments known as chlorophyll. Now this chlorophyll that absorb the heat energy, that is the sunlight, and with the help of the carbon dioxide from the surrounding converts or prepares the starch and oxygen. Now how these green leaves prepared the food with the help of sunlight? As we know that you can see in this picture that there are the green leaves that have the small pores on their surface. These small pores, they are known as stomata. You can see in the pictures that green pores, they are known as stomata. स्टोमाटा जो होता है वो लीव्स के ऊपर छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके अंदर से सनलाइट और एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स के अंदर जाता है और with the help of the water they converted into starch and oxygen. Stomata they also have the guard cells which help for the opening and closings of the stomata. I repeat, the guard cells present in the stomata helps for the closing and openings of the pores, that is stomata. Now अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस होता होगा कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, सो वो कैसे अपना खाना खुद प्रिपेयर करते होगी. नहीं,
जो जैसे मैंने पहले कहा, only the green color plants, they prepare their foods for themselves, for them and for other living things also. So let's discuss now how the plants that do not have the chlorophyll, how they prepare their own, how they take the nutrition from surrounding. This kind of modes of nutrition in plants is known as heterotrophic mode. मीन्स जो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. सो द प्लांट्स दैट डू नॉट हैव द क्लोरोफिल्स, दे आर नोन एज heterotrophs. Examples is given here, and such kind of relations is known as host and parasite type of relation. This kind of relations is known as host and parasite type of relation. Example is कसकुटा, जिसको हम अमरबेल के नाम से हम जानते हैं. Now what is the host? Host plants that provide food to other plants. ये रिलेशन होस्ट एंड पैरासाइट टाइप के रिलेशन में होस्ट हम किसको बोलेंगे? सो होस्ट मतलब ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं, वैसे प्लांट्स को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट. व्हाट इज द पैरासाइट देन? द प्लांट्स दैट डिप्राइव न्यूट्रिएंट्स. डिप्राइव मतलब ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, जिनके लीव्स में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स नहीं होते हैं. सो ऑब्वियसली वो अपना खाना अपने लिए नहीं बना सकते, वो खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो ऐसे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं. सो ऐसे प्लांट्स दैट डिप्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स, दे आर नोन एज पैरासाइट, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज known as host and parasite type of nutrition, host and parasite type of relationship. मतलब इसमें एक प्लांट पे दूसरा प्लांट या ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है. Now next one is, have you ever heard that the some plants also eat animals? Yes. The plants examples known as the pitcher plants, they are known as insectivorous plants. Now why these plants known as insectivorous plants? Because they eat small insect for their nutrients. Now what is the need to eat this insect? Because such plants that may be or may not be of green color, मीन्स वो ग्रीन कलर के होते भी हैं और नहीं भी होते हैं. अगर वो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन वो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ से उनको उनके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. So the plants do not get all the required nutrients from the soil. कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे सॉइल जो होती है वो वेल फर्टिलाइज नहीं होती है. सो ऐसी जगह पे जो प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल पीचर प्लांट, जो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से नहीं मिलते हैं, इसलिए वो छोटे इंसेक्ट को खाते हैं. वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं उनके बॉडी में एक तरह का एंजाइम निकलता है. जैसे आप पिक्चर में देखते हो कि पिक्चर प्लांट जो है उसका इस तरह का शेप है, ऊपर छोटा सा लीड है, लीड मतलब कि ढक्कन जैसा होता है. जैसे ही वो इंसेक्ट अंदर जाते हैं उसके बॉडी में, वो लीड बंद हो जाता है और छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो उनके बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं, और इस तरह से वो अपना न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट में से लेते हैं. Next one is known as saprotrophs. Now what is this saprotrophs? Organisms that secrete digestive juice on the dead and decaying matter and absorb the nutrients from it. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
सिर्फ सड़े हुए खराब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, उनमें से ही वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड मशरूम। बच्चों, आपने देखा होगा कि आप जब घर पे ब्रेड लाते हो, आप उसको यूज़ नहीं करते हो, 2-3 दिन ऐसे ही पड़ी होती है फ्रिज में, मॉइस्चर्स में, और फिर हम उसको बाहर रखते हैं तो 2-3 दिन के बाद उस पर ग्रीन कलर के या ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? दे आर द फंगी। मतलब फंगी जो होता है वो एक तरह का प्लांट्स है, एक तरह का प्लांट्स ही है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट इट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिके। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े हुए फूड में से ही अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एग्जाम्पल इज मशरूम एंड फंगी। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे हमने देखा कि किस तरह से होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। उसमें होस्ट जो होता है वो पैरासाइट को न्यूट्रिएंट्स या फूड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में some organism that provide shelters and nutrients together and share shelter and nutrients। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ समझ के रहते हैं। जो एक दूसरे को, दो जन होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है और जो शेल्टर प्रोवाइड करता है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में से न्यूट्रिएंट मिलता है, यानी कि फूड मिलता है। एग्जाम्पल इज लाइकेन। लाइकेन जो है वो इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्बिनेशन है अलगा एंड फंगस का। अलगा जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। मतलब कि अलगा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और बदले में फंगस जो है वो अलगे पे डिपेंड रहता है और अलगे को फंगस पे उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को फायदे होते हैं। होस्ट एंड पैरासाइट में क्या होता है? पैरासाइट जो होता है वो होस्ट को यूज़फुल नहीं होता है, वो सिर्फ उसको नुकसान ही पहुंचाता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे टोटली डिपेंड होता है, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऑपोजिट टू दैट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को यूज़फुल होते हैं, दोनों एक दूसरे को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। Now, so students, here we have studied there are two types of the nutritions in the plants. First is known as autotrophs, the second is known as heterotrophs. Okay students, अब हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो खुद के लिए भी खाना बनाते हैं और हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी वो फूड प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमने देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ग्रीन कलर के प्लांट्स में होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स में होते हैं। नाउ अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, उनको दूसरे न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। सो अब ये दूसरे न्यूट्रिएंट जो उनको सॉइल में से मिलते हैं वो कहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे? सो दिस आर द स्टेप। वी कैन प्रोवाइड दिस इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बाय स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। व्हाट इज़ दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मतलब कि जिसको हम वो खातर बोलते हैं, वो हम रेगुलरली सॉइल में ऐड करते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को चाहिए होता है वो कम हो जाते हैं, तो हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करके उसको हम प्रोवाइड करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम्स एट एक्स्ट्रा। सो प्लांट्स को दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, एग्जांपल नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये हम सॉइल में फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड करके उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो गया होता है उस तरह का, उस टाइप का फर्टिलाइज़र या मैन्योर हम उसमें ऐड करेंगे। सेकेंड इज बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। Now what is this leguminous plants?
लेग्यूमिनेंस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट में राइजोबियम नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं, वो उनके रूट में पाए जाते हैं। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो हवा में से नाइट्रोजन्स को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि रूट उसको, प्लांट्स जो होते हैं वो हवा में से नाइट्रोजन्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। So as we know that the plants cannot absorb the nitrogen directly from the air. So this rhizobium bacteria that helps the plants to absorb the nitrogens from the air converts it into solubles in water so that the plants can absorb the nitrogens easily from the soil. सो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और बदले में प्लांट्स के रूट जो हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही हुआ। सो स्टूडेंट्स, यू गेट द आइडिया दैट which are the different types of nutrients in the plants. Once again, let's do revisions. We have studied that there are two types of nutrition in the plants. The first is autotrophic and the second is heterotrophic. Heterotrophic में भी फिर से दो तरह के होते हैं. The one is parasitic, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन एक ऑर्गेनिज्म टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। द सेकेंड इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को यूजफुल होते हैं, एक दूसरे को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.